So what's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Friday, 20th of Feb, and the markets have been swinging wildly in both the directions owing to constant news flow from the global front. So yesterday, the markets tanked by more than 500 points and the VIX shot up by 10% and the markets closed somewhere around 25,400 levels. And even yesterday, the straddle spiked by more than 60 points and the straddle was trading somewhere around 290 at yesterday's close. Today, the markets opened pretty flat, 25,400 levels pe markets open hua, but instead of breaching the yesterday's low, the markets saw a sharp rally of 275 points. So from 25,400 levels, the markets hit 25,675 levels. But in spite of markets showing a very good recovery, we are seeing another 7% spike in the VIX. So VIX currently is trading at somewhere around 14.5 levels and the option premiums of all the long-term contracts are shooting through the roof. And in spite of a good 250 points of rally and the markets are hovering somewhere around 25,500 levels today, the weekly Nifty premiums are still trading around 250. Straddle opened at 260 levels, and as the market started spiking up, even the premiums started shooting up, and at one point the straddle spiked to almost 280 levels, and by the end of the day it is closing somewhere around 250 levels. And now we have the weekend and Trump is evaluating all different forms of the tactics to actually threaten Iran, but we don't know whether these theatrics will lead to something concrete or not. So the markets are at the edge of their seats and nobody wants to carry any risk over the weekend, and because of that we are seeing some amount of spike in the straddle premiums as well. So Monday we have 1DT ahead of Nifty's monthly expiry and volatility is kind of a given now. So let's get to the terminal and let's see Monday के दिन कैसे plan कर सकते हैं, because we have decent premiums going into the weekend, but क्या हमको यही premiums मिलने वाला है क्या Monday opening पे? So that is something we need to wait and watch. Alright, so let's get to the terminal and let's see. Alright, the markets have been swinging in wide ranges. कल भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का डेली रेंज बना एंड 3 दिन पहले जब एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल प्रिंट हुआ था उस दिन भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का एक डेली कैंडल बना. ऑल दिस while the weekly straddle itself is trading somewhere around 300 points. So the VRP is definitely negative and the realized volatility is much higher than option premiums are implying, and at the same time we have this uncertainty at the global level where US can anytime attack Iran and things can escalate pretty quickly. Generally कैसे होता है, जो J curve का एक effect होता है, तो most of the time we think that oh we are here and it looks pretty innocuous, इतना dangerous नहीं लगता, but suddenly as that J curve starts to kick in, the effect starts to kick in, suddenly ये जो कॉन्वेक्सिटी जो बढ़ जाता है इट विल बी मोर दैन व्हाट वी कैन एक्चुअली कॉम्प्रहेंड. अगर कोविड के टाइम पे अगर आपको याद है तो सिमिलर काइंड ऑफ अ सिनेरियो था. तो जनवरी एंड तक फरवरी एंड तक वी यूज टू गेट लाइक वन ऑफ न्यूज़, वन ऑफ इवेंट्स आर मिल रहे थे कि इधर थोड़ा कोविड का केसेस बढ़ रहा है, इधर थोड़ा वायरस स्प्रेड हो गया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हो रहा था. बट सडनली एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ जैसे मंथली एक्सपायरी यूएस में खत्म हो गया, सडनली देयर वॉज अ ह्यूज सेल ऑफ एंड पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि whenever there is a constant news flow that is around, so we have to be a little careful because as I always say, the markets have been there before I was born or you were born, and the markets are gonna be there even after our deaths. So there should not be any hurry to make money, especially whenever we feel that there is uncertainty that's rising. As ट्रेडर्स वी आर इन द बिजनेस ऑफ अनसर्टेनिटी, बट अगेन अनसर्टेनिटी अगर हमारे कंट्रोल के बाहर ज़्यादा हो जाता है तो वी हैव टू यूजुअली रिस्क ऑफ. एंड व्हेन आई से रिस्क ऑफ, ईदर रिड्यूस योर पोजीशन साइज एज और कंप्लीटली सिट आउट ऑफ द मार्केट्स और वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव वेयर यू कैन कैपिटलाइज द एग्जिट लिक्विडिटी ऑफ द स्टक ट्रेडर्स. तो वो करना चाहिए. एट दिस पॉइंट आई डोंट हैव एनी व्यू ऑन द प्राइस एक्शन बिकॉज द मार्केट्स आर जस्ट showing some sort of a knee-jerk reaction to the global news. So lower time frame पे बात करें तो today was some sort of a strong recovery kind of a day. बट ये जो रिकवरी के बाद ना मोस्ट प्रोबेबली जो वॉलिटिलिटी जो है विक्स जो है वो थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए था एंड लॉन्ग टर्म का जो ऑप्शन प्रीमियम्स है वो भी कूल ऑफ होना चाहिए था इफ द मार्केट्स वर सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ अ कूल ऑफ और सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेबिलिटी. बट अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ सेल ऑफ नव. We have another 10 minutes for the market action and the VIX is up 7.5%. So this doesn't give some sort of a confidence to say that oh markets ने यहाँ पे bottom बनाया है, because I would not consider this as the bottom. अगर markets ने इस low को अगर तोड़ता है तो then I'll be trying to go in the direction of the trend. And Monday again
निफ्टी के मंथली एक्सपायरी के पहले वाला 1DT है, तो यूजुअली थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी डेफिनेटली दिखने वाला है. एंड वी गॉट दिस वाइड रेंज 25,900 ऑन द अपसाइड एंड 25,400 ऑन द डाउन साइड. एंड यहाँ पे एक माइनर इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी यहाँ पे बना हुआ है समवेयर अराउंड 25,650 लेवल्स. सो इट्स गोना बी गुड इफ द मार्केट्स vibrate in this wide range for tomorrow and then chooses one particular range for the monthly expiry. तो वो हमारे लिए एक फेवरेबल सिनेरियो बन जाता है. तो लेट मार्केट डिसाइड विच रेंज द इट हैज़ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन, राइट. तो मंडे के लिए मेरा जो प्लान रहने वाला है वो मोस्टली वेट एंड वॉच रहने वाला है. एंड अगर मार्केट्स लेट्स से फ्लैट ओपन करके यहाँ पे आता है, लाइक द मार्केट हैज़ टू बेसिकली ट्रैवल अ मिनिमम ऑफ 150 पॉइंट्स. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज द स्ट्रैडल इटसेल्फ इज प्राइसिंग इन समवेयर अराउंड 200-220 पॉइंट्स. तो कम से कम 150 पॉइंट्स मेरे को मार्केट्स इंट्राडे में ट्रैवल करना चाहिए एंड देन इट हैज़ टू हिट द सपोर्ट लेवल्स. तो मान लो अगर मार्केट 25,600 के आसपास ओपन होगा एंड देन अराउंड 200 पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस इंट्राडे में ट्रैवल करेगा, देन इट प्रॉम्प्ट्स अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन. यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो शॉर्ट्स गए होंगे वो लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ट्राई करेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा इनिशिएटिव बायर्स भी आ सकता है. तो वी कैन प्लान सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड एट दिस लेवल. अगर स्ट्रैडल की बात करें, यू कैन नोटिस दैट द स्ट्रैडल इज स्टिल ट्रेडिंग at around 230 levels. Just 5 मिनट पहले 250 पे ट्रेड कर रहा था, बट नाउ दैट वी आर सीइंग समवेयर अराउंड 237 240 के आसपास स्ट्रैडल अभी ट्रेड कर रहा है. तो मोस्ट प्रोबेबली 240 या 250 के बीच ही स्ट्रैडल खुलने वाला है, बिकॉज देयर इज अनदर 10 मिनट्स. एंड अभी जैसे जैसे हम बात कर रहे थे, कैन नोटिस दैट द स्ट्रैडल अगेन स्पाइक बैक टू 250, दो इट गिव्स अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड फॉर द पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडर्स, बट द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट्स फ्लोटिंग अराउंड इन द मार्केट्स वुड नॉट प्रॉम्प्ट एनीबडी टू टेक दीज काइंड्स ऑफ रिस्क. ये जो रिस्क जो स्पेशली वीकेंड के टाइम पे अगर होल्ड करना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू बी टाइटली हेज एंड यू शुड बी विलिंग टू लुक एट सम सॉर्ट ऑफ अ वाइल्ड मार्क टू मार्केट स्विंग्स इन योर पोर्टफोलियो एज वेल. सो 240 अगर मार्केट्स ने मंडे के दिन अगर फ्लैट खुलता है, देन मोस्ट प्रोबेबली एक 30 to 40 पॉइंट्स ऑफ इमीडिएट ओवरनाइट क्रश हमको देखने को मिल सकता है. तो 200 के आसपास स्ट्रैडल खुलने वाला है एंड 200 के बाद मोस्ट प्रोबेबली वी माइट बी पोटेंशियली एबल टू सी अराउंड 40 पॉइंट्स ऑफ वॉल क्रश ऑन मंडे, टीटा डीके या वॉल क्रश जो भी होने दो. सो मोस्ट प्रोबेबली मंडे के एंड तक 160 या 150 के आसपास स्ट्रैडल होने वाला है. तो अगर उसके नीचे हो जाता है, देन अगेन ईदर सम सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज वुड हैव कम, सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेबिलिटी वुड हैव कम इन द ग्लोबल फ्रंट, और द मार्केट्स आर काइंड ऑफ अंडरप्राइजिंग the risk for the expiry, because February की expiry है, monthly expiry है, and amidst that the markets are susceptible to a lot of news flow. So अगर 200 के ऊपर अगर खुलता है मार्केट, देन प्रोबेबली आईड बी लुकिंग टू शॉर्ट द वॉल्स, बेसिकली डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड 10% साइज के साथ मैं ट्रेड कर सकता हूं, बिकॉज आई कैन सेंस अ पोटेंशियल 50 to 60 पॉइंट्स ऑफ क्रश इंट्राडे. बट अगर 200 के नीचे खुल जाता है, 210 या 210 के नीचे अगर खुल जाता है, देन मोस्ट प्रोबेबली डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग विल बी अनवायबल ऑन मंडे. रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से बैठता नहीं है. अगर प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेड्स लेना है, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. मार्केट्स को पहले अगर आप मंडे ट्रेड करते हैं, लेट द मार्केट्स ट्रैवल अ मिनिमम ऑफ 150 पॉइंट्स बिफोर हिटिंग योर सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस. तो जनरली मीन रिवर्शन ट्रेड ही मैं प्लान करने वाला हूं, बिकॉज मार्केट्स ने ट्रेंड फॉलोअर्स को काफ़ी अच्छा दिन यहाँ पे भी दे चुका है एंड यहाँ पे भी एक ट्रेंडिंग डे दे चुका है, उसके बाद भी ट्रेंडिंग डे दे चुका है. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू एक्चुअली चॉप द ट्रेंड फॉलोअर्स, बिकॉज मार्केट्स हमेशा साइकिल में काम करता है. किसी एक टाइप ऑफ ट्रेडर्स को कंटिन्यूसली मार्केट्स पैसा नहीं देने वाला है. सो वॉट आई वुड बी डूइंग इज आई वुड बी लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स, बट अगेन रेंज काफ़ी बड़ा है. तो अगर मार्केट 25,700 के आसपास खुलेगा, देन आई विल ट्राई टू इनिशिएट द मीन रिवर्शन ट्रेड अराउंड 25,850 लेवल्स इटसेल्फ. आई विल नॉट डेफिनेटली वेट फॉर 25,880 लेवल्स. यहां पे मैं इनिशिएट करूंगा, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली यहां से मार्केट वापस आ जानी चाहिए अगर नीचे आना है तो. बट अगर मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगा, देन डेफिनेटली माई स्टॉप लॉस वुड बी 25,900. सो एक 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ एक 100 पॉइंट्स का हम रिवॉर्ड्स प्लान कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड. बट अगर मार्केट यहाँ पे 25,600 या 25,550 के आसपास ओपन होके इफ इट हिट्स 25,400 लेवल्स, देन हम यहाँ पे एक और मीन रिवर्शन ट्रेड ले सकते हैं. बट यहाँ पे हम लोगों को एक SAR मतलब स्टॉप एंड रिवर्स काइंड ऑफ अ पैटर्न के लिए हम लोग थोड़ा रेडी रहना चाहिए. मान लो यहाँ पे हम लोग एक लोअर टाइम फ्रेम पे W पैटर्न और एक ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल अगर मिल जाता है, देन वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर पैटर्न टू गो लॉन्ग इन द मार्केट्स. यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं. बट अगर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, then we should not hesitate to go in the direction of the trend as well. But again, दो ही ट्रेड्स होना चाहिए. हो सकता है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर दे एंड स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड आप बेसिकली मार्केट्स में शॉर्ट भी गए एंड उसके बाद मार्केट्स थोड़ा देर जाके वापस मार्केट रिवर्स भी हो जाए. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. सो दैट इज वाई I always say whenever the markets are reacting to the news flow,
limit your position size. 10 to 15% साइज से ज़्यादा ट्रेड मत करो, बिकॉज यूजुअली मार्केट्स में जब वॉलिटिलिटी होती है, इवन दिस 10 to 15% ऑफ द साइज itself will give you a decent P&L swings, and this 10 to 15% size itself is, you know, enough for you to make whatever the money that you would have otherwise used 50-60% of your capital to make, because volatility का nature ही ऐसा होता है. Alright, apart from that, I'll not plan too much at this point, because even I don't know what's going to be the outcome, because 2 दिन है, there is so much of news flow around, so I'm not here to predict, and अभी के हिसाब से मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें plan करूँगा. For me, we are trading in a wide range with a lot of extreme kind of a moves, because आज भी आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स पे स्ट्रैडल खुला था, बट मार्केट्स ने वन डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स एक्चुअली मूव हो गया विदाउट गिविंग एनी सिग्निफिकेंट वॉल क्रश और TTRDK फॉर दैट मैटर. सो दैट इज वाई मैं थोड़ा अवॉइड करने वाला हूँ, बिकॉज लास्ट 2 एक्सपायरीज ऑल्सो हैव टेकन लॉस. प्रीवियस एक्सपायरी आई हैव टेकन 0.1% लॉस, एंड उसके पीछे वाला एक्सपायरी आई हैव टेकन 0.2% लॉस. सो आई एम नॉट इन अ मूड टू एक्चुअली try my luck here using some of the impulsive trades. All right, I hope you guys have a decent day. मतलब most probably you guys wouldn't have taken any trades today, because हमारा जो trading plan था, तो अगर ये low breach होता तो like we would have gone in the direction of the trend, but ये up move के लिए कोई भी plan किया नहीं रहेगा. And yes, so I'll see you after Monday's market action, and you guys have a great weekend. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.